अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउल इस्लाम जदून और आप देख रहे हैं इन्फो डॉट गेट। आज हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को। हम लोग सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, और न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट्स में हम लोग आज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को स्टडी करेंगे। जो क्लासिकल थाट्स थी उनकी फेलियर की वजह ये थी कि उन्होंने ज़्यादा फोकस किया हुआ था फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, और उन्होंने निगलेक्ट कर दिया था द रोल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स. So the human relation theories were developed after classical thoughts, that was administrative and scientific management theories. After the criticism from the scientific, there were a need to develop a human relations school. So Hawthorne studies basically give rise to this new movement, which is known as human relation movement. Hawthorne studies के बारे में भी हम पढ़ेंगे. बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, लेकिन जो सबसे पहला एनालिसिस था वो किया हाथोन एक्सपेरिमेंट ने. देयर आर मैनी कंट्रीब्यूटर्स फॉर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बट द फर्स्ट सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन वाज मेड इन द फॉर्म ऑफ हाथोन एक्सपेरिमेंट. And the classical theorists stress on the formal structure of organization and mechanistic view, and they neglected the role of human element in organization. So it is the critical failure of classical theories. The Hawthorne studies was basically conducted by Alton Mayer and Fritz Roethlisberger in 1920s, which the workers at the Hawthorne plant of a Western Electric Company. Researchers started investigating that what are the reasons for human behavior at work. The credit of development of human relation approach is given to Alton Mayer, who was basically a psychologist. The other individuals who contributed to the human relations schools are Abraham Maslow and M.C. Greer. The Hawthorne's plant of Western Electric Company was manufacturing telephone system Bell, and it implied about 30,000 at the time of experiment. The company was basically providing benefits like pension, sickness benefits, and other relational benefits, but they observed that there was a great deal of dissatisfaction among the workers, and the productivity was not really up to mark. So in 1924, a team of Alton Mayer, they investigated what are the real causes behind this phenomenon. They conducted various researches in 4 phases from 1924 to 1932, that for a period of 8 years they conducted 4 experiments. ये जो कंपनी थी ये बेनिफिट्स, बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही थी, लाइक पेंशन होगी, सिकनेस बेनिफिट्स और इस तरह के. उसके बावजूद जो प्रोडक्शन थी वो उस तरह की नहीं थी जैसी कि कंपनी चाह रही थी. तो इस वजह से हाथोन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जिसमें 4 फेजेस हैं, 1924 टू 1932, और 8 साल का ये एक्सपेरिमेंट था. हम अब इस एक्सपेरिमेंट के ये जो 4 फेजेस थे, इन फेजेस को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. The experiment was conducted in an Western Electric factory outside the Chicago. So what is the reason? The reason of conducting this experiment was to find out the factors that basically brings fluctuations in the work productivity. The experiment was conducted in 4 phases. That the first phase is illumination experiment, that is from 1924 to 1927. Second part, a relay assembly test room study, that is conducted in 1927 to 29 of 2 years. The third is mass interviewing program from 28 to 1930 of 2 years. The fourth is bank wiring observation room, that is conducted in 1933. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट. जो वर्कर्स थे कंपनी में वो टेलीफोन एक्सचेंज बेल्स प्रोड्यूस करते थे, और जो सीलिंग था उसमें एक लाइटिंग सिस्टम था सीलिंग में. तो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में वो क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे, दैट द फिजिकल फैक्टर्स लाइक द अमाउंट ऑफ लाइट और वेरिंग लेवल्स ऑफ amount of light, whether it affects the productivity or not, and they assumes that the higher illumination would basically increase the प्रोडक्टिविटी. अब यहाँ पर लाइट को चेंज किया जाएगा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देखा जाएगा कि प्रोडक्टिविटी इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता. जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप को एक्सपेरिमेंट था उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. द फर्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सपोज टू वेरिंग इल्यूमिनेशन, जहाँ पर
जो लाइट का इफेक्ट था उसको चेंज किया जाता था, वेरी किया जाता था। द सेकंड इज कंट्रोल ग्रुप। इन दिस देयर वाज नो वेरिंग इल्यूमिनेशन एंड नो कांस्टेंट इल्यूमिनेशन। इसमें क्या था जी कि जो लाइट थी उसको इफेक्ट जो था उसको चेंज नहीं किया जाता था, वही कांस्टेंट लाइट थी। अब इन दोनों ग्रुप्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को पढ़ते हैं। इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दे मेड changes in illumination and when there was an increase in illumination the productivity increased। अब जब लाइट इफेक्ट को तेज किया गया था तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। when there was a decrease in illumination surprisingly productivity will increase still increased। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब लाइट इफेक्ट को डिक्रीज किया गया तब भी जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें वो इंक्रीज हुई। व्हेन देयर वाज वेरी डिम इल्यूमिनेशन देन ओनली द प्रोडक्टिविटी डिक्रीज्ड। और जब बिल्कुल डिम लाइट, मून लाइट में वर्कर्स को बिठाया गया तो उस वक्त जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई। अब कंट्रोल ग्रुप में क्या हुआ जी? इन द कंट्रोल ग्रुप इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इल्यूमिनेशन विल बेसिकली रिमेन कांस्टेंट बट स्टिल द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। And they find out that there is no relationship between illumination of light and productivity. So researchers find as they increase the illumination in the both groups, they increases the production, but will illumination was decreased, the intensity was decreased। अब यहाँ पर जब कंट्रोल ग्रुप में भी जब लाइट इफेक्ट को चेंज नहीं किया गया था तो वहाँ पर भी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हुई, वो ज़्यादा थी। The production continued to both the groups and the production in the experimental group was decreased when the illumination was decreased with the level of moonlight। यहाँ पर भी मूनलाइट पे ही प्रोडक्शन डिक्रीज हुई और ऐसा ये साबित हुआ कि कोई भी इनका आपस में फिजिकल फैक्टर्स का और जो प्रोडक्शन है उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। And the conclusion is that the illumination has no any effect on productivity। जो लाइट का इफेक्ट है इसका कोई भी प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब अगर एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट इफेक्ट नहीं कर रहा तो फिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं? तो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट जो 1927 से 29 तक था। As there is no factor that is affecting productivity but there is something else। वो क्या चीज़ थी? So they worked out on the changes on job condition। अब जॉब कंडीशन को चेंज किया गया। क्यों किया गया? To observe effect of various changes in working condition on work output and morale। They set up a relay assembly test room and it involved assembly of telephone relays and in which they had a group of 6 women। She were selected and they had to work with each other and the output basically depend on the speed and the continuity in which the women worked। If one woman did not work properly it would affect the productivity of all the 6 women। अब रिले असेंबली जो टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट में उसमें क्या है जी कि एक ग्रुप बनाया गया जिसमें 6 लड़कियों का, और इसमें देखा जाएगा जी कि एक ग्रुप में रहकर और इंडिविजुअली जो अगर उनसे काम करवाया जाएगा तो आउटपुट किस तरह की होगी और कैसी होगी। और अगर एक वो लड़की भी, एक वुमेन भी अगर काम प्रॉपरली नहीं करती तो उसका असर बाकी जो लड़कियां हैं, जो बाकी गर्ल्स हैं, काम करने वाली वुमेन है, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड विद इंट्रोड्यूसिंग वेरियस चेंजेस एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज फ्रॉम 4 to 6 वीक्स। 4 से 6 हफ्तों का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें चेंजिंग्स की जाएंगी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली चेंजिंग की। नाउ दे इंट्रोड्यूस डिफरेंट चेंजेस। द फर्स्ट चेंज वाज दैट द इंसेंटिव सिस्टम वाज चेंज्ड टू instead of entire organization the productivity depending on the entire organization productivity, they paid each girl extra on the basis of other 5 girls। So if 6 girls together had increases productivity then they were paid extra rather than in the output of the large group। So what happened was they saw that the productivity increased as compared to before। अब जो नेक्स्ट इसमें चेंजिंग्स लाएगी उसमें ये किया गया था कि 5 मिनट का जो रेस्ट था, जो वक्फा था, वो इसमें चेंज किया गया मॉर्निंग में और इवनिंग में भी 5-5 मिनट का। लेटर दिस रेस्ट वाज इंक्रीज टू 10 मिनट्स, अगेन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड।
जब पहले तो 5-5 पे मिनट के वक्फे में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन जब 10 मिनट का जब वक्फा रखा गया तो उसमें प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हुई। जो थर्ड चेंज क्या थी वाज 4 ब्रेक्स ऑफ 5 मिनट्स दैट डिक्रीज द प्रोडक्शन स्लाइटली। द रीज़न वाज द फ्रीक्वेंट रेस्ट अफेक्टिंग द रिदम ऑफ वर्क। अब ये हुआ थर्ड में क्या हुआ कि 4 ब्रेक्स थी 5-5 मिनट की, तो उससे क्या हुआ कि रिदम ऑफ वर्क था वो डिस्टर्ब हो रहा था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। अब फिफ्थ में वर्किंग आवर्स को चेंज किया जाएगा। फिफ्थ चेंज वाज चेंजिंग इन द वर्किंग आवर्स एंड वर्क डेज वर इंट्रोड्यूस्ड। They eliminated Saturday work and also allowed to leave early, that is from 5 p.m. to 4 p.m. That has increased the productivity. इस changing hours ने भी productivity को increase किया। अब इन चेंजिंग्स की वजह से लोग एब्सेंट होना कम हो गए और क्या हुआ, उनका मोराल ज़्यादा हो गया। इन नेक्स्ट स्टेप द रिसर्चर्स रिमूव ऑल द चेंजेस एंड सरप्राइजिंगली द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया कि वो सारी चेंजिंग्स जो थी, वक्फा जो था उसके अलावा जो भी उनमें चेंजिंग्स लाई गई थी वो सारी रिमूव कर दी थी, तो जिसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ हुई। यहाँ पर भी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ नहीं हुई। इट वॉज कंक्लूडेड दैट द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड नॉट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चेंज इन द फिजिकल फैक्टर बट बिकॉज ऑफ द गर्ल्स एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क एंड देयर वर्क ग्रुप, सो दे डेवलप्ड अ फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. So the physical factors did not affect the productivity. It was the attitude and group behavior that was affecting the प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ से ये साबित होता है जी कि जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं, टाइम चेंज करना या जो लाइट इफेक्ट को चेंज करना, दैट डिडंट अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। तो क्या चीज़ अफेक्ट करती है, वो वर्कर का एटीट्यूड, उसका ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप में जो बॉन्डिंग है, उनकी रिलेशंस हैं, उनका जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, या ये चीज़ जो है ना, उनका बिहेवियर, बिलोंगिंगनेस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही होती है। अब नेक्स्ट फेज़ में मैस इंटरव्यू प्रोग्राम है जो 1928 और 1930, ये भी 2 साल का था। ये किस लिए कंडक्ट किया गया, टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। देखें, अब पहले ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही थी, तो अब इस मैस इंटरव्यूइंग प्रोग्राम का मकसद जो था वो टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर इन द कंपनी, बिकॉज दे नो दैट द ह्यूमन बिहेवियर इज अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या किया गया जी, नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ वर कंडक्टेड विद अबाउट 2000 employees to determine the employee attitude toward company supervisor, insurance plan, promotions and wages etc. अब उनसे इंटरव्यू लेकर ये चीज़ें पूछी जाएंगी उनके सुपरवाइज़र के बारे में, उनके इंश्योरेंस प्लान के बारे में। अब उनको मोटिवेट किया जा रहा है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से। The direct interviewing was conducted and answer was yes and no. So employees are not able to give the answer directly, so they change the style of interviewing to open-ended questionnaire. जब उनसे डायरेक्ट पूछा गया कि सुपरवाइज़र आपका कैसा है, यस और नो, तो वो जो एम्प्लॉयज़ थे वो इस चीज़ का डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने ओपन एंडेड क्वेश्चनियर रख लिए कि वो अपनी मर्जी से क्वेश्चनियर को फिल करें इसमें, लेकिन जी हाँ जी ये कैसे है, क्या चीज़ नहीं है। अब फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे बैंक वायरिंग ऑब्जर्विंग रूम, जो 1933 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं जी कि इसमें क्या क्या किया गया। In banking wiring observation room, they selected 14 male workers and the men were engaged in the assembly of terminal banks for the use of telephone exchange. Experiment was conducted to analyze the functioning of small group and how it affect the individual behavior. Now they find the hypothesis in order to earn more, the workers would basically produce more and also get the group bonus. They would help to each other to produce more. However, the hypothesis is not valid. Surprisingly, the result in the workers decided the target for themselves, which was lower than the company target or not the higher target so this study suggested that informal relationships are an important factor in determining human behavior and productivity. अब यहाँ पर बहुत मज़े की एक चीज़ होगी कि ये क्यों इन्होंने कंपनी टारगेट से कम रखा वर्कर्स ने और प्रोडक्टिविटी कम हुई, इसका क्या रीज़न था। द वर्कर्स गेव रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। क्या रीजन्स थी जी, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उनको अनएम्प्लॉयमेंट का डर था। क्यों डर था, इफ़ पर हेड प्रोडक्शन इंक्रीजेज
then some of their friends would be fired. अगर पर हेड के से देखा जाए तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई तो वो उनके दोस्त जिन्होंने कम प्रोड्यूस किया होता था उनको फायर किया जाता, उनको निकाल दिया जाता. फेयर ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड, इफ़ दे प्रोड्यूस मोर द स्टैंडर्ड विल रेज अगेन, दैट इज़ वाई दे गिव रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. थर्ड क्या है जी, प्रोटेक्ट द स्लोअर वर्कर्स, फॉस्टर वर्कर्स प्रोड्यूसेस रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट्स. अब वही बात जो स्लोअर वर्कर्स या उनके दोस्त या बाप जो भी थे उनकी वजह से. सेटिस्फेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट सीम टू एक्सेप्ट low production rate as no one was fired for restricted output and so they did not care to protect more. ये वो 4 एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के नाम से भी याद किया जाता है. इनकी वजह से कुछ करेक्टर्स डेवलप हुए, करेक्टर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वर डेवलप्ड. अब उन करेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन. From this experiment, the characteristics of human relation approach were developed, and they found that organization is a social system that is composed of many integrating groups. अब इस एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड किया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोशल सिस्टम है जो बहुत से ग्रुप से मिलकर बनती है. मैनी फॉर्मल ग्रुप्स इमर्ज एट द वर्क प्लेस एंड दे हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स. बहुत से ग्रुप्स मिलते हैं और इमर्ज होते हैं वर्क प्लेस पे और उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है बिहेवियर पे, एक मेंबर पे. नेक्स्ट है जी, द वर्कर्स डोंट ऑलवेज बिहेव रेशनली, दैट इज इमोशंस, फीलिंग्स एंड वैल्यूज, दीज थिंग्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज इन डिसीजन मेकिंग. ये बहुत अहम बात है. इसके बारे में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में भी बात की थी जी कि जो डिसीजन मेकिंग है अगर उसमें वर्कर हिस्सा लेगा तो उससे क्या होगा. बेसिकली दिस डिसीजन मेकिंग में अगर वो हिस्सा लेगा तो वो उसकी मोराल को बूस्ट कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, ज़्यादा कर देगा और वो और ज़्यादा दिल से और ज़्यादा लगन से काम करेगा. जब वो ज़्यादा लगन से ज़्यादा दिल से काम करेगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, मींस कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. एंड द प्रोडक्टिविटी सो वर्कर्स पार्टिसिपेशन वाज गिवन इम्पोर्टेंस इन दिस पार्टिकुलर अप्रोच. सो इस अप्रोच में जो वर्कर की पार्टिसिपेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई. सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को पढ़ा और उससे रिलेटेड बहुत से एक्सपेरिमेंट्स पढ़े. ये न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक था. तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट है. तो इसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को पढ़ा और फिर वो 4 एक्सपेरिमेंट्स को आर्थन के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया. वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे. अब उन एक्सपेरिमेंट से कुछ करैक्टर्स डेवलप हुए, उन करैक्टर्स को भी हमने स्टडी किया. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारी थ्योरी है वो है बिहेवियरल साइंस अप्रोच. ये जो थ्योरीज़ हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर नॉलेज के हवाले से देखा जाए कि एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट को इन थ्योरीज़ के बारे में और जो एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए. उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया है. आज की क्लास आपने बहुत इन्जॉय की है. अगर आपने लेक्चर इन्जॉय किया है और आपने इससे कुछ सीखा है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी अपने क्लास फेलो से इसको सब्सक्राइब करवाएं. और जो अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नेक्स्ट भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे. इसी के साथ इजाज़त दीजिए मोहम्मद शुजाल इस्लाम जैतून को और देखते रहिए info.gate. अल्लाह हाफिज़.